अच्छा जी, एक सेगमेंट हम शामिल करना चाहेंगे यहाँ पर जिस पे नौजवानों का बड़ा इंटरेस्ट होगा, पर्टिकुलरली जो अभी OA लेवल्स कर रहे हैं या कर चुके हैं या FSC कर रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दहाइयों से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रही है इंग्लैंड, UK। तो पाकिस्तानियों का बरतानिया जाकर तालीम हासिल करना, हमारे बरतानिया से तालीमी राब्ते 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, बाय द वे, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल तक ने वहाँ से आला तालीम जो है वो हासिल की थी। तो अपने सबने माशरती उलूम की किताबों में पढ़ा ही होगा ना? तो ये बात तो कब से शुरू हुई है। नेचुरली इफ दैट दोज आर द फुटस्टेप्स टू फॉलो, तो आइडियली तो स्टूडेंट्स का दिल चाहता है वहाँ जाके पढ़ें। और इसलिए जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और UK के दरमियान हायर एजुकेशन के लेवल पर पोटेंशियल के मुताबिक पार्टनरशिप नहीं, तो फौरी तौर पर हैरत ही होती है कि वाई नॉट, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो लेकिन गौर से देखें तो ये बात गलत नहीं है और इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर जैसा एक्सचेंज होना चाहिए वो अब तक नहीं है, तो दैट इज़ वन थिंग। एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। एजुकेशन कमीशन के साथ वैसे मुआहदे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामलात में और उन शोबों में भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होना चाहिए जो नहीं है। और जो भी ये सारा सिलसिला जो है कई मसाइल की निशानदही करता है और उनके हल के लिए बरतानिया की मारूफ जामियात का एक नुमाइंदा वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। एंड वी आर ऑनर्ड कि उस वफ्द में शामिल हैं प्रोफेसर सर स्टीव स्मिथ, जो कई यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के वाइस चांसलर रहे हैं और फिर सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए एजुकेशन भी रहे हैं। और आज ये हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। सर स्टीव स्मिथ इनका नाम है। इनफैक्ट वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है इस वक्त की, तो डेफिनेटली हम उम्मीद रखते हैं, अभी उनसे बात भी करेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, it's an honor to have you over as well. And we'll start the conversation with Sir Steve Smith. Absolutely, we would like to welcome you to Pakistan and also to our show. Thank you so much for taking out the time for us. First up, you are here, you must have visited some institutions, spoken to a lot of people. What potential do you see for collaboration between the two countries in the education sector? Oh, I think the potential is enormous. There's already some very, very good partnerships between British universities and Pakistani institutions, but this visit is the largest visit we've ever sent of leading British universities, 15 university heads with me, and our regulator, our quality assurance organisation. We've met with universities, we've met with our very close partners at the HEC, with the Minister of Education, and of course yesterday with the Prime Minister, and we're convinced that there's a lot more we can do together by working in partnership. So we think the future is incredibly bright for a much stronger and deeper partnership, and that's the key word, between the UK and Pakistan, especially in what we call transnational education. That is, British degrees taught here in Pakistan in collaboration with institutions here, rather than students necessarily having to come to the UK. That's very right, Sir Steve Smith. You know, there's online classes available, degrees that UK universities can offer to Pakistani students here, while they don't have to go to England or UK, any other place. But also, we would like to ask you that recently Pakistanis have favored going to UK and studying there for decades now, but lately it has become very expensive. Even for those who could afford earlier are now not able to send their children. Is that a concern in UK too? Well, you're absolutely right. I mean, the cost of education has risen around the world, and the reason we're here and the reason we're working so closely with the Pakistani government and the HEC in particular is because we want to offer UK quality education, not at the UK price that you'd pay if you came to the UK, but at a price that's suitable for the inclusive society of Pakistan. And the only way we can do that is partnership with the NEC
with the HEC, and with the policy on transnational education, so that we can actually work with institutions here to provide the same quality as you get in the UK, but at a price point that's suitable for everyone in this country. We do not want high quality education to be priced out of the reach of the ordinary Pakistani. We'll include Dr. Mukhtar as well in the conversation. Dr. Saab, thank you so much for taking out the time for us. Dr. Saab, how has the meetings been so far? And if you could share with us some ideas, something that you all are working on for the benefit of Pakistani students. और डॉक्टर साहब आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस के लिए आसानी हो समझने में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। ये अभी आपने जो इंट्रो में बताया है कि बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की। लेकिन ये जो PNE के नाम पे जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में शुरू हुआ था, तो उसके जो मसाइल थे तो हमने इनको एंगेज किया, एंड इट इज लास्ट 2 year एक्सरसाइज एंड वर्किंग टुगेदर विद आवर पार्टनर इन यूके, स्पेशली सर स्टीव स्मिथ, who is the leader in the champion of higher education in the UK. We are honored to have them here in Pakistan. Dr. Mukhtar, we are not able to hear you clearly. There's some sort of distortion in the line. We have Smith with us and Dr. Mukhtar with us. We'll try to, as in our team and your team would try to fix it. हम जो थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं क्योंकि आवाज़ खराब थी और हमें भी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर स्टीव स्मिथ जो हैं वो ये कर रहे हैं, यहाँ HEC के हेड के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि भाई आपको यहाँ, मुझे पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से UK की डिग्री ऑफर करती हैं इन एक्सचेंज प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन अब वो सिलसिला बड़ा एक्सपैंड होने जा रहा है, हो सकता है मतलब उसके एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बरतानिया जाएं और आप वहाँ पढ़ें और वहाँ से फ़िज़िकली जाके डिग्री हासिल करें। आपके लैपटॉप के ऊपर पूरी दुनिया आपको पता है मौजूद है, सो वहाँ जो क्लास हो रही होगी आप यहाँ वेरी मच अपने घर बैठे वो क्लासें अटेंड कर सकते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी का मतलब ऑनलाइन तरीके से उसी तरह हिस्सा हो सकते हैं और वो डिग्री यहाँ बैठ के हासिल कर सकते हैं। आपको बेनिफिट्स वही मिलेंगे, आपको एजुकेशन वही मिलेगी, आपको ट्यूटर्स वही मिलेंगे, तो एक्सेप्ट फॉर द कैंपस एक्सपीरियंस, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन वो खर्चा देखें कि कितना वो कम होगा उस तरह। सो ये कुछ एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि ज़ाहिर है दहाइयों से हम जानते हैं बच्चे जाते हैं यहाँ से और कोलैबोरेशन होती है, लेकिन अब HEC की सतह पे, हुकूमती सतह पे क्या एवेन्यूज डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज गो अहेड सर। जी मैं बता रहा था कि हमने फिर एक पूरा क्वालिटी फ्रेमवर्क पे हमने एग्रीमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन के साथ वो फैसिलिटी यहाँ भी प्रोवाइड होंगी, और जो स्टूडेंट पाकिस्तानी यहाँ रजिस्टर होंगे दे विल आल्सो बी कंसिडर्ड स्टूडेंट ऑफ यूके, और उनको मोबिलिटी की भी वही ऑप्शन होगी, वो चाहे तो यहाँ पढ़ें चाहे तो वहाँ जाके पढ़ें। ऑफ कोर्स कास्ट डिफरेंस होगी, अगर वहाँ जाके पढ़ेंगे तो वहाँ की कास्ट देनी पड़ेगी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने अचीव किया है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज आर आल्सो गोइंग टू गो देयर एंड ऑफर देयर डिग्री प्रोग्राम इन यूके मार्केट। और on top of that, हमने एग्री किया and we are thankful to Sir Smith because he is the champion of higher education from UK government and he is leading this all this kind of collaboration. उसमें ये होगा कि हम joint research collaboration करेंगे, innovation पे आपस में मिलकर काम करेंगे, और जैसे मैंने कहा आपसे कहा कि शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उसकी अब जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब यूनिवर्सिटी हम इनकी कोलैबोरेशन करा रहे हैं, आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा की मुश्तरक यूनिवर्सिटियों से मिलेंगे, कल वो लाहौर जा रहे हैं, 2 दिन लाहौर में रहेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटियों से उनको मिला रहे हैं, एंड दे आर वेरी इंप्रेस्ड एंड माशाल्लाह सब यूनिवर्सिटियों ने इंटरेस्ट शो किया है। उन्होंने RFP इशू किया था यूके में, 31 यूनिवर्सिटीज यूके ने इंटरेस्ट शो किया है कि दे आर विलिंग टू कम टू पाकिस्तान एंड वर्क विद अस, और दिस इज अ वेरी गुड नंबर फ्रॉम यूके एंड स्कॉटिश गवर्नमेंट साइड। और हम इसमें से 15 टॉप यूनिवर्सिटियों को, जिसमें रसल ग्रुप भी है, ग्लासगो है, डंडी और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटियां भी आई हैं, तो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया। ये हमारी यूथ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अफोर्डेबल कास्ट पे एक अच्छी प्रोग्राम, अच्छी एजुकेशन यहाँ भी हाइब्रिड सिस्टम में भी
कंप्लीट 1 डिग्री के इस बेसिस पे भी और डिफरेंट किस्म के मॉडल भी हम इनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाके, ताकि जो आपको पता है कि यहाँ पे मिसयूज भी चीजें हो जाती हैं, उसको अवॉइड किया जाए और बच्चों को नुकसान ना हो। और कुछ शोबे हैं ऐसे हुमा और डॉक्टर साहब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं. फॉर इंस्टेंस स्टीव स्मिथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट there are many valuable doctors who are serving in NHS, and a lot of medical students here in Pakistan, you know, go through the route of PLAB and then serve in the National Healthcare System in England, in UK. But there are not as many nurses as we can produce and who can be a part of that system as well. So there are still sectors or fields which are untapped. That's true, and of course, the key thing is our relationship with the HEC enables us to raise at the highest levels ways of resolving these issues. The key to any relationship is about trust, right? And so what we will do is any issues that are raised on Pakistan government side, we're very happy to take on board and discuss back in the UK. The truth is, this is not about a 1 year or a 2 year solution. This is about a long-term partnership between our two countries. So if there's an issue on nursing or doctors or anything, we will work with the government of Pakistan to try and resolve that. This is about the long term, not an immediate fix. Yes. Another aspect and a question, I think it's a concern or a query you could say from Pakistani students for Sir Steve Smith, that of course going to a university in the UK is an ideal scenario, but now recently, in recent times, we've seen that one can take online degrees as well, you know, through Zoom classes and online education. Can we ever compare that to on-campus experience? Can that be an alternative? Yeah, a true alternative. Yeah, do you think? That's a really good question. If we were doing this interview 6 years ago, I'd say no, they're totally different. What the pandemic did, the COVID pandemic, it meant that in the UK students were taught online for nearly a year because campuses were not open in the normal way. Right. What that's enabled us to do is to develop ways of integrating online and in-person teaching. So online education has come on leaps and bounds. It's much better than it was. So lots of programs now, even if you're on campus, the lectures are online. You study them at a time that suits you, then you go to the seminars. So I think we're now in a much more hybrid world than we were before. And what we want to do is to ensure that whether you study for a degree in person or online in the UK or here in Pakistan, you get the same quality outcome. It's quality to the student that matters most. Right. Wonderful. डॉक्टर साहब आपसे हम लास्टली बस अब गुफ्तगू को वाइंड अप रैप अप करते हुए यही पूछेंगे कि ये जो सारी गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, आगे फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कब से अमल दरामद शुरू हो जाएगा? एक्चुअल स्टूडेंट को इसका फ़ायदा कब से मिलना शुरू होगा? और व्हाट आर दोस टॉप 3 थिंग्स जो कि आपको लग रहा है कि इस विजिट में आप लोगों ने अचीव की हैं इनके या हासिल की हैं? देखें, एक तो आपने कहा कब से शुरू कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हमने ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट वी आर डन और इंशाल्लाह इस कमिंग फॉल से ही इस पे काम शुरू हो जाएगा. Rather, I should say we have already started from yesterday. So things are already in place. इस वक्त काम शुरू हो चुका हुआ है. पहले भी TNE के नाम पे कुछ अदारे ऑफर कर रहे थे, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ये अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी होगा. फिजिकल इनके ऑफशोर कैंपसेस भी यहाँ आ रहे हैं, 1-2 का ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है प्रोसेस और कमिंग फॉल में उनके एडमिशन होंगे. तो ये बड़ी अच्छी चीज है. जो आपने कहा 3 important thing, we will be partnering with Pakistani institution, with UK and Scottish institution as a partnership, and with and as Sir Steve Smith said that from UK side, Sir Steve Smith and his organization, and from Pakistan side, HEC and our organization, they will be acting as a facilitator to keep things on prospect so that things should work properly and we should keep on moving for long-term strategic partnership. So this is a very good initiative. And I want to congratulate all, especially thanks to UK and Scottish government, our Pakistani government for believing in us, and we are already there, inshallah.
Wonderful, Ji, and good luck. Good luck with that. Thank you so much for being on our show, Sir Steve Smith and Dr. Mukhtar Ahmed. बड़ी अच्छी बात सर स्टीव स्मिथ ने कही कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, आप कैंपस में हो या ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियस चीज़ से फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं लेकिन उनको हमेशा लगता है कि वो वाली बात नहीं है। अब वो वाली बात छोड़ दें, इवन ऑनलाइन आप कैंपस में जब होते भी हैं, और जो इनका बताना था हमें, तो तब भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। मतलब जो बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं वो भी अपने सेमिनार्स वगैरह अपने टाइम के मुताबिक अटेंड करते हैं। ज़्यादा ट्यूटरिंग जो होती है ऑनलाइन होती है। बेहतर नहीं है कि ऑनलाइन एक बेहतरीन आप लेक्चर लें। हाँ, ये भी एक है, ये भी तो एक पहलू है ना इस बात का। डॉक्टर मुख्तार का भी ये कहना था कि बहुत से कैंपसेस इधर खुल भी रहे हैं दोनों की कोलैबोरेशन से, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू।